Yes, चलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. लेट अस कंटिन्यू द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन. ठीक है ना. तो लॉज ऑफ मोशन के अंदर हमने लास्ट टाइम ये देखा था कि न्यूटन सेकेंड लॉ किस तरह से यूज किया जाता है और न्यूटन सेकेंड लॉ एक्चुअली कहता क्या है. ठीक है ना. उसका स्टेटमेंट हमने लर्न भी किया था. इट टेल्स अस सिंपली दैट the rate of change of momentum is actually directly proportional to the applied force, and that change in momentum always takes place in the direction of the applied force. And उसका mathematical form हमने कल लिखा था. तो force if F bar is actually equal to dp bar by dt. This is the most general form of the expression or mathematical form of the Newton's second law of motion, which can be converted into F bar is equal to m times of dv bar by dt if m is constant. ओके. अगर m constant है तो ये हमको मिलता है, और अगर velocity is constant, v is suppose constant, and in that case we get this F bar to be simply equal to v into dm by dt. एग्जांपल्स भी हमने लिए थे कल. और अगर neither of them is constant, then in that case the force F bar actually happens to be m into dv by dt plus v bar into dm by dt. So this is actually the expression for the Newton's second law in general. Okay. तो ये जनरल इक्वेशन है न्यूटन सेकेंड लॉ का. याद रखो ठीक से. ये तीनों फॉर्म्स जो है वो अच्छी तरह से याद रखो. कभी ये हमको काम में आता है, कभी ये वाला हमको काम में आता है, और कभी कभी ये भी काम में आता है. और इसमें इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं F bar is equal to m into a bar, where a is going to be the acceleration, right? The derivative of velocity with respect to time is actually called as acceleration, and that is the this is the Newton's second law in mathematical form. चलो ठीक है. So this is all about the Newton's second law. We can see. And from this Newton's second law, we come to know a very important concept that is called the force, right? The force is nothing but the physical quantity which changes or tends to change the uniform motion of any body, that is called as the force. And depending upon whether the force जो है तो वो कौन से टाइप का है, या उसके उसके ऊपर भी अलग अलग कैटेगरीज बनते हैं. जैसा कि हम देखते हैं यूनिवर्स के अंदर जो फोर्सेस जो है वो on the basis of whether their origin, they are categorized in two different categories. One is called as the real force, and the second is called as the pseudo force. Okay, देखो ठीक से. There are two categories of the forces based on their origin, where they originate from. तो उसके ऊपर बेसिस पे हम ये दो कैटेगरीज बनाते हैं. एक होता है रियल फोर्सेस एंड दूसरा होता है pseudo forces. We'll just understand the difference between the two. Basically, real forces are the forces which are originated due to the real interactions, like gravitational interaction. सबसे पहला उसमें आता है gravitational interactions. दूसरा होता है electromagnetic interactions, और तीसरा होता है न्यूक्लियर इंटरेक्शंस. ठीक है. तो बेस्ड ऑन देयर ओरिजिन वी कैन क्लासिफाई दिस forces into two parts, two different categories: real forces and pseudo forces. We'll just see this pseudo forces shortly. इसके pseudo force के बारे में हम just एक 2 मिनट के बाद हम बात करेंगे. पहले हम ये तीनों के बारे में बात करके लेंगे. ठीक है. What are the real forces? These real forces are further classified, or they are of three types. One is the gravitational force, electromagnetic force, and nuclear force. We can see these are the real interactions, like gravitational force. What do you mean by the gravitational force? The force of attraction between any two masses which are separated by distance r from each other is directly proportional to the gravitational force of attraction between two particles here is given by Newton's law, which tells us simply that the force between the two particles is directly proportional to the product of their masses. Okay, product of their masses.
Yes, product of their masses, that means m1 into m2, and it is inversely proportional to the square of distance between them. So this is the Newton's law of gravitation. Remember, the gravitational force exists between every pair of particles. तो कोई भी दो पार्टिकल्स अगर है, उनका मासेस कितना भी छोटा या कितना भी बड़ा हो, तो उनके अंदर हमेशा ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा काम करता ही करता है, याद रखो ठीक से। और उसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, तो वो हमको मिलता है F दैट इज इक्वल टू G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। दिस इज द न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन मैथमेटिकल फॉर्म। बेसिकली ये जो फोर्स है, ये हमेशा इन दो पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाले लाइन के अलाउंग काम करता है। ऑलरेडी वी हैव डन और सीन दिस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन द चैप्टर ग्रेविटेशन। इफ यू रिमेंबर, तो ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमने ये बहुत डिटेल में देखा था, काफी डिटेल में हमने उसके बारे में स्टडी किया है ऑलरेडी, उसके सारे प्रॉपर्टीज हमको पता है ऑलरेडी। तो हम देखते हैं कि इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका क्या है? इट्स अ लॉन्ग रेंज फोर्स। लॉन्ग रेंज इन द सेंस the force is effective, gravitational force is effective up to large distance. So कई किलोमीटर्स या कई मील्स तक ये इफेक्टिव होता है, और इसलिए उसको कहा जाता है इट इज अ लॉन्ग रेंज फोर्स। द सेकेंड थिंग इज दैट इट्स अ वीकर फोर्स, और यू कैन से वीकेस्ट फोर्स, वीकेस्ट ऑफ ऑल थ्री। ये ग्रेविटेशनल फोर्स, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन सब के बारे में अगर कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज गोइंग टू बी द वीकेस्ट फोर्स हियर। उसका जो स्ट्रेंथ है वो बाकी इन दोनों फोर्सेस से कम हुआ करता है। तीसरा हम उसका कैरेक्टरिस्टिक बोल सकते हैं कि इट इज गोइंग टू बी द, इट इज नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम, ठीक है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम। ओके, अनलाइक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द मीडियम। तो जैसे ही मीडियम चेंज हो जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बदल जाता है, ठीक है ना। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज डिफरेंट इन वैक्यूम, इट इज डिफरेंट इन एयर, और इट इज डिफरेंट इन सम अनदर मीडियम लाइक वाटर और एनी अदर मीडियम। तो इट चेंजेस फ्रॉम मीडियम टू मीडियम। व्हाट अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बारे में हम बोल सकते हैं कि it depends on the medium, but here this gravitational force doesn't depend on any medium, remember. And even this gravitational force is supposed to follow the inverse square law. Inverse square law matlab kya? It depends inversely on the square of distance, and that's why it is supposed to follow the inverse square law, remember. So this is the important property of gravitational force. It goes on decreasing at the distance between two particles goes on increasing. अगर समझो ये दो पार्टिकल्स है, अगर कुछ डिस्टेंस पे हमने उनको रखा है तो उसके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो हम निकाल सकते हैं आराम से। बट इफ वी जस्ट डबल द डिस्टेंस, व्हाट विल हैपन इज द ग्रेविटेशनल फोर्स विल बिकम 1/4 लाइक दिस। इफ वी ट्रिपल द डिस्टेंस, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स विल जस्ट बिकम 1/9 एंड सो ऑन लाइक दैट। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है तो उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स कम 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 होता जाता है, and that's why it's supposed to follow the inverse square law, remember. And also the gravitational force doesn't depend on the state or temperature of the bodies involved. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो ठीक से। the gravitational force doesn't depend on the state of the substances और टेम्परेचर पे भी डिपेंड नहीं करता है। जैसा भी देखो, सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, डजंट मैटर। अर्थ का टेम्परेचर कम है, डजंट मैटर। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड अर्थ इज गोइंग टू बी द सेम इररिस्पेक्टिव ऑफ द टेम्परेचर। तो टेम्परेचर क्या भी हो, उससे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स को लेना देना नहीं है, और ना ही स्टेट के साथ कोई लेना देना है। अभी सन जो है, सन इज मेड अप ऑफ गैसेस, डजंट मैटर। सो बेसिकली these are the characteristics of this gravitational force, we can see. Now the next is about the electrostatic force. Now we'll see the characteristics of electrostatic force. Yes, the second is electrostatic force, which tells us simply that if there are two charges q1 and q2 and they are separated by some distance r, then according to the Coulomb's law, the force of attraction or repulsion between the two charges
is always directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of distance between them. This is also we have already seen in the electrostatics. Okay, so इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने देखा था कि इसका जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है तो वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनता है और ये एज इट इज. तो दिस इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स. ठीक है ना, विच अभी इसमें भी एक बात याद रखो ठीक से कि द फोर्स बिटवीन टू स्टेशनरी चार्जेस is always going to be electrostatic force, no doubt. But when the charges are in motion, the force between the charges in motion will be actually called as the magnetic force, which you have to study in the next chapter, that is about magnetism. So here this the same force जो है इस एक ही force के अलग अलग एस्पेक्ट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स के फॉर्म में काम करते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहा जाता है. Electric force and magnetic force are not two different forces, actually they are just the two different aspects of the same force. When their charges are at rest, the force between them can be supposed to be electrostatic one, and when the forces are in motion, then the force between them is supposed to be magnetic, no doubt. So what are the characteristics of this electrostatic force now? So electrostatic force, अभी देखो gravitational force is always attractive, ये एक बात याद रखो ठीक से. But electrostatic force can be attractive as well as it may be repulsive also. तो attractive और repulsive ये उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक हो गया, हम तो बोल सकते हैं. दूसरा इसमें हम देख सकते हैं कि it is stronger, okay, stronger than the gravitational force, stronger than the gravitational force and weaker than nuclear force. ठीक है, उसका जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा होता है लेकिन न्यूक्लियर फोर्स से थोड़ा कम होता है. और अगर रेंज की बात करते हैं, रेंज तो कहां तक वो फैला हुआ है, तो उसकी अगर बात करते हैं तो इट इज समवॉट शॉर्टर रेंज फोर्स देन द ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स तो करोड़ों करोड़ों मील्स तक फैलता है, ठीक है ना, इफेक्टिव रहता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उतना ज्यादा दूर तक नहीं फैला हुआ होता है. बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन चार्ज ऑल्सो, बट स्टिल इट इज शॉर्ट रेंज फोर्स, और वी कैन से शॉर्टर रेंज फोर्स. shorter range matlab as compared to gravitational force its range is going to be short, but as compared to nuclear force its range is going to be large. That's why we can just say that the range of electrostatic force is going to be moderate, or we can say between the gravitational force and nuclear force. Third characteristic of this is it depends on the medium, right? तो डिपेंड मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम के ऊपर वो बिल्कुल डिपेंड करता है. अलग अलग मीडियम के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग अलग हुआ करता है. तो ये तीसरा पॉइंट हम इंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे. और एक बात हम समझ सकते हैं आराम से कि दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वी कैन सी इट इज ऑल्सो फॉलो द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, इनवर्स स्क्वायर लॉ ये भी फॉलो करता है क्योंकि इसमें भी द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, द टू चार्जेस. तो दो चार्जेस को के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस अगर हमने बढ़ा दिया तो उसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कम हो जाएगा, बिल्कुल. सो इट विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज द डिस्टेंस गोज ऑन इंक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू द स्क्वायर, एंड दैट्स व्हाई इट्स सपोज्ड टू फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ. एंड और एक कैरेक्टरिस्टिक हम यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि इट एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस. मतलब कोई भी दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स काम करेगा वो हमेशा इन दोनों के लाइन के अलोंग ही होगा. अभी समझो ये Q2 की वजह से जो Q1 के ऊपर फोर्स एक्ट होगा वो जरूर इस तरफ ही होगा ना. कभी भी ऐसा हो नहीं सकता कि ये चार्ज Q2 इधर है और इसके ऊपर फोर्स इस तरफ काम करे, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी होने वाला ही नहीं है. क्यों? क्योंकि द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस Q1 and Q2 in this way. Okay, so this happens here, and these are the all characteristics of this electrostatic force we can see clearly. And now we can just talk about the nuclear force. What is nuclear force? See here, we already know that this is suppose nucleus, and the different electrons revolve around the nucleus in circular orbits. कोई फर्स्ट ऑर्बिट में घूमता है, कोई सेकेंड ऑर्बिट, कोई थर्ड ऑर्बिट, तो अलग अलग ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं. ठीक है, तो न्यूक्लियस के और हमको जानते हैं ऑलरेडी कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं प्रोटॉन्स उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हुआ करता है, करेक्ट है.
ये सब प्रोटॉन्स है. दिस इज अ प्रोटॉन, दिस इज अनदर प्रोटॉन. सो ऑल द प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज. ओके. एंड इवन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स भी हुआ करते हैं. न्यूट्रॉन्स. सो दीज आर द न्यूट्रॉन्स विच आर न्यूट्रल, कंप्लीटली न्यूट्रल. दे डोंट हैव एनी चार्ज. ओके. सो अभी सवाल पैदा होता है कि अभी ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है, ये दूसरा प्रोटॉन भी पॉजिटिव चार्ज है, और इनके बीच में डिस्टेंस इतना कम है, फिर भी ये प्रोटॉन्स को रिपेल क्यों नहीं करते हैं? एंड व्हाई द न्यूक्लियस जस्ट गेट बर्स्ट. ठीक है ना. ये सारे जो प्रोटॉन्स है वो बर्स्ट आउट क्यों नहीं हो जाते, या दूर दूर सेपरेट क्यों नहीं हो जाते हैं, जबकि उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और वो इतने कम डिस्टेंस पे भी है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो उनके ऊपर काम करेगा, तो वो एक दूसरे को रिपेल करने के लिए काम करेगा जरूर, लेकिन फिर भी प्रोटॉन्स जो है वो प्रोटॉन इस न्यूक्लियस के अंदर ही बंधे हुए रहते हैं बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स. रिमेंबर, this nuclear force binds all these positive charged particles and neutral particles to combine together in the nucleus. तो इन सभी पार्टिकल्स को, जिनको न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन्स. ठीक है. तो न्यूक्लियर पार्टिकल्स मतलब प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, इन सबको कंबाइन करके बांध के रखने वाला जो फोर्स है न्यूक्लियस के अंदर, तो वो फोर्स ही एक्चुअली न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है. तो इसमें एक बात याद रखो ठीक से, दिस न्यूक्लियर फोर्स डजंट डिपेंड ऑन द डिस्टेंस. Remember, so we can say that we can list out the characteristics of this nuclear force also. So सबसे पहला characteristic क्या है उसका? It doesn't depend on the distance. It doesn't follow inverse square law. ठीक है. Inverse square law वो follow नहीं करता है, बिल्कुल नहीं. मतलब ऐसा नहीं है कि the force between the two protons will depend on the distance, and as the distance will increase, so nuclear force will go on decreasing. No, बिल्कुल नहीं. ठीक है. तो स्क्वायर डिस्टेंस के ऊपर वो नहीं डिपेंड करता है. इट डजंट सेटिस्फाई इनवर्स स्क्वायर लॉ. दिस इज द ओनली फोर्स व्हिच डजंट सेटिस्फाई इनवर्स स्क्वायर लॉ. बाकी ये दोनों जो है वो दोनों इनवर्स स्क्वायर लॉ सेटिस्फाई करते हैं, बट दिस डजंट सेटिस्फाई द इनवर्स स्क्वायर लॉ. सेकंड थिंग वी कैन लिस्ट आउट हियर इज इट इज द शॉर्टेस्ट रेंज फोर्स बिकॉज इट इज इफेक्टिव विद इन द न्यूक्लियस ओनली. जैसे अगर ये प्रोटॉन अगर बाहर चला गया, न्यूक्लियस के बाहर चला गया, तो it is not effective there. ठीक है. The nuclear force will be effective only and only within the nucleus. So it is the shortest range force. तो रेंज उसका जो है वो सबसे छोटा है बाकी इन दोनों के कंपैरिजन में. लेकिन अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं, स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ के बारे में हम देख सकते हैं कि इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन. सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स ही है. ठीक है. इट बिकॉज इट कैन बाइंड ऑल दिस प्रोटॉन्स together in the nucleus, even if they have positive charges and there is a repulsion between the two protons, but by overcoming all this repulsion, these protons are bound together, held together in the nucleus because of this strong nuclear force. Remember, so these are the characteristics of nuclear force, and again it doesn't depend on the medium also. So all these things are there in these forces. So these three combined together are called as real forces because they arise from some real interactions. You can see. Okay, कोई भी फोर्स जो हम यूनिवर्स के अंदर देखते हैं वो इन्हीं तीनों में से किसी एक कैटेगरी के अंदर आता है. देखो ठीक से, जैसे अगर सपोज हम कोई भी फोर्स अगर अप्लाई करते हैं, तो या सपोज रस्सी है, रस्सी से अगर हम खींचते हैं, तो उसमें भी उस रस्सी के अंदर जो पार्टिकल्स है या एटम्स, मॉलिक्यूल्स है, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टाइप का ही हो गया, एक तरह से हम देख सकते हैं. या सन के आसपास जो सब प्लैनेट्स घूमते हैं, अर्थ भी घूमता है, या अर्थ के आसपास भी जो सब सैटेलाइट्स घूमते हैं, या कोई भी चीज जो नीचे गिरता है, उसका रीजन ग्रेविटेशनल फोर्स ही है. तो वी कैन सी दैट ग्रेविटेशनल फोर्स इज द मेजर फोर्स acting on all the objects, almost all the objects. Even frictional force arises due to the gravitational force only. So therefore even frictional force जो है वो भी हम देख सकते हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स का भी रीजन जो है ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इन दोनों इंटरेक्शन से ही हमको मिलता है. ठीक है ना. और न्यूक्लियर फोर्स तो बहुत सटल लेवल पे काम करता है, वो तो न्यूक्लियस के अंदर ही काम करता है. ठीक है. तो इसलिए उसका कोई डेली लाइफ एग्जांपल हम नहीं देख सकते, लेकिन जस्ट वी कैन अंडरस्टैंड दैट ऑल द फोर्सेस इन द यूनिवर्स कैन बी कैटेगराइज्ड इन दीज थ्री डिफरेंट कैटेगरीज. रिमेंबर, these are the three types of the real forces.
But what is the pseudo force now? We can understand what is pseudo force. Basically, pseudo force is a separate category which is not real. Actually, the forces which arise doesn't arise due to real interactions, but they arise due to some acceleration of the frame of reference is called as the pseudo force. देखो, ये pseudo force के बारे में समझने के लिए सबसे पहले हमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा. व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? व्हाट डू यू मीन बाय द फ्रेम ऑफ रेफरेंस? यस, देखो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब होता क्या है कि कोई भी ऑब्जर्वर का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है या ऑब्जर्व करने का जो फ्रेम होता है, उसको ही हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं. जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी कार के अंदर अगर बैठा हूं तो वो कार मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. या इस क्लासरूम के अंदर अगर मैं बैठा हूं तो ये क्लासरूम मतलब एक मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब सिंपली वी कैन से एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम with reference to which the motion of an object is described is called as the frame of reference. ठीक है, जैसे for example we can see if suppose there is a xy coordinate system and there is a particle which is at this location, तो जिसका coordinate suppose 4,5 है, so we can just describe the position of the particle to be 4,5 with respect to this frame of reference. So we can say that this is the frame of reference and this is the position of the particle. Or if suppose the particle is moving in some direction along x-axis with the speed of suppose 3 meters per second, so the speed is expressed in terms of this frame of reference. तो ये frame of reference के हिसाब से ही हम ये speed express करेंगे. ठीक है ना, क्योंकि देखो होता क्या है ना कि कोई भी एक suppose मान लो कि कोई भी एक vehicle जो है अगर move कर रहा है, जब कहते हैं कि कोई vehicle suppose move कर रहा है और वो 30 किलोमीटर पर आवर इस स्पीड से वो मूव कर रहा है, तो जब हम ये कहते हैं तो उसके साथ हम हमारे दिमाग में हमेशा कुछ ऐसी चीजें होती है जो ऑलरेडी रेस्ट में है कि नहीं. जैसे पहाड़ है या कोई ट्रीज है, जैसे यहाँ पे सपोज एक ट्री है, यहाँ पे एक ट्री है, सपोज यहाँ पे एक ट्री है, तो ये सारी चीजें जो है वो रेस्ट में है. तो इनके कंपैरिजन में हम ये कहते हैं कि ये बॉडी जो है वो मोशन में है. ठीक है ना, तो whenever we see the body in motion or whenever we describe the motion of a body, we always have some objects which are already at rest, and in comparison to those objects we are going to express the motion of this body in this way. तो ये जो पहाड़ है या ट्रीज वगैरह जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारे हिसाब से फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया. दैट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ये जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और उसके हिसाब से ये ट्रेन या कोई भी व्हीकल का जो स्पीड है या उसका जो मोशन है या लोकेशन है वो हम यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं. तो इसलिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब क्या होता है? इट इज द एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ रेफरेंस टू विच द मोशन और पोजिशन ऑफ ए बॉडी इज डिस्क्राइब्ड. रिमेंबर, एट द सेम टाइम इफ सपोज देयर इज अ ट्री, सपोज हमारे पास एक एग्जांपल है, एक ट्री है सपोज, और उस ट्री का लोकेशन हम दो लोगों से अगर पूछते हैं, ये सपोज फर्स्ट पर्सन और ये सपोज सेकेंड पर्सन, अभी सपोज ये पर्सन कहता है कि दिस ट्री इज एट अ डिस्टेंस 5 मीटर अवे एंड दैट इज ऑल्सो टुवर्ड्स ईस्ट सपोज. ठीक है, ये क्या कहेगा? ट्री इज टुवर्ड्स ईस्ट एट 5 मीटर डिस्टेंस. ओके, वही इस पर्सन को अगर पूछा जाए तो क्या कहेंगे? दिस पर्सन विल से दैट द ट्री इज एट अ 3 मीटर डिस्टेंस एंड टुवर्ड्स वेस्ट. अभी सोचो कौन राइट है? जरूर बोलना पड़ेगा दोनों राइट है, ठीक है नहीं, क्योंकि ये पर्सन क्या कह रहा है कि ट्री इज एट अ 5 मीटर डिस्टेंस एट द ईस्ट, बट ये पर्सन कह रहा है कि द ट्री इज एट अ 3 मीटर डिस्टेंस एट द वेस्ट. करेक्ट है दोनों, लेकिन दोनों का जो डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन अलग अलग क्यों है? क्योंकि दोनों का फ्रेम ऑफ रेफरेंस ही अलग अलग है, इसलिए उन दोनों का डिस्क्रिप्शन अलग अलग मिल रहा है हमको. करेक्ट है? यस यस यस, बोथ ऑफ देम आर राइट इन देयर रिस्पेक्टिव फ्रेम्स. बिल्कुल करेक्ट है. तो इसलिए हम देख सकते हैं कि भले ऑब्जेक्ट एक ही है, मोशन एक ही है, लेकिन द सेम मोशन कैन बी डिस्क्राइब्ड इन अ डिफरेंट वे by the two different observers
just because their frame of reference is different. As an another example, suppose एक ट्रेन है, suppose ये पुणे और suppose this is Mumbai, and suppose this is a train which is moving from Pune to, ठीक है, मुंबई. तो अगर जब ट्रेन मुंबई की तरफ जा रहा है तो कोई भी पैसेंजर या कोई भी जो ऑब्जर्वर जो प्लेटफॉर्म पे खड़ा है या किसी रास्ते पे खड़ा है, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में क्या होगा, वो क्या कहेगा कि ट्रेन इज मूविंग फ्रॉम पुणे टू मुंबई. करेक्ट है. उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस ट्रेन का मोशन कौन सा है, पुणे टू मुंबई है. ठीक है. सो वी कैन से दैट द ट्रेन इज ऑलरेडी मूविंग इन द टुवर्ड्स मुंबई. ओके. लेकिन जो ऑलरेडी पर्सन जो इस ट्रेन के अंदर बैठा है, मान लो कि एक पर्सन जो इस ट्रेन के अंदर चेयर पे बैठा है, तो वो क्या कहेगा, उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखा जाए तो एवरीथिंग इज मूविंग बैकवर्ड्स. करेक्ट है. उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसको दिखाई देगा कि सारे जो बाहर की जो चीजें हैं वो सब पीछे की तरफ मूव कर रही है. बराबर है. इसलिए उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये होगा कि ही विल कंसिडर हिमसेल्फ टू बी एट रेस्ट, बट he will just imagine everything to be moving backwards with the same speed as it is moving in the forward direction. तो इसलिए ये हम जब ट्रेन के अंदर जब हम बैठते हैं तो हम अपने आप को हमेशा रेस्ट में एक्सपीरियंस करते हैं, रेस्ट में कंसिडर कर लेते हैं और ये एज्यूम करते हैं कि जो बाकी जो चीजें हैं वो पीछे जा रही है और जो आने वाली चीजें जो है वो हमारी तरफ आ रही है. जैसे हमारा लैंग्वेज भी ऐसा ही हो जाता है कि मुंबई इज कमिंग इन 10 minutes और the next station पनवेल is coming within 2 minutes, ऐसा होता है. तो और just पुणे has just passed, तो ऐसा बोलते हैं ना हम. तो ये बोलने का मतलब क्या है कि we are considering ourselves at rest, हम अपने आप को रेस्ट में कंसिडर कर रहे हैं और बाकी जो चीजें हैं उनको पीछे की तरफ जाता हुआ एक्सपीरियंस कर रहे हैं. इसलिए हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस उस समय ट्रेन के साथ बंधा हुआ है. हाँ, लेकिन जैसे हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो हमारा फ्रेम अर्थ के साथ बंधा हुआ हो जाता है. तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे तो ट्रेन मोशन में है, बट ट्रेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे तो एवरीथिंग आउटसाइड द ट्रेन इज इन मोशन इन बैकवर्ड डायरेक्शन. ठीक है ना. सेम चीज अभी चलो ठीक है, अर्थ पे भी अगर हम आ जाते हैं तो अर्थ के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम देखते हैं कि पहाड़ या नदियां या ट्रीज वगैरह सब रेस्ट में है. ठीक है, सब रेस्ट में है. लेकिन अगर हम अर्थ से थोड़ा दूर चले जाते हैं और सन के साथ अगर हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस फिक्स कर देते हैं तो सन के साथ बंधे हुए फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अगर देखते हैं तो पूरा अर्थ ही हमको दिखाई देगा कि इट इज मूविंग. बट व्हेन वी फिक्स आवर फ्रेम विद द अर्थ इटसेल्फ, देन वी कैन जस्ट फाइंड ऑल द ऑब्जेक्ट्स व्हिच आर ऑन अर्थ ऑलरेडी टू बी एट रेस्ट. बट व्हेन वी फिक्स आवर फ्रेम टू द सन, देन एवरीथिंग ऑन अर्थ विल अपीयर टू बी मूविंग. ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन. ठीक है, अराउंड द सन इन दिस वे. ये फर्क पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस बदलने की वजह से. So the same motion can appear in a different way in different frames. As another example, if we have some aeroplane, suppose एक aeroplane हमारे पास है, suppose ये aeroplane आगे बढ़ रहा है. अभी अगर एरोप्लेन से अगर हम एक कॉइन या कोई भी एक बॉल अगर इस तरह से ड्रॉप करते हैं तो इस बॉल का जो मोशन है वो जो ऑब्जर्वर खड़ा है यहाँ पे अगर कोई ऑब्जर्वर अगर उसको देखता है तो इस ऑब्जर्वर के फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इस बॉल का मोशन कैसे होगा, बिकॉज व्हेन द प्लेन वाज मूविंग एंड द बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम इट, द बॉल वाज आल्सो मूविंग इन द सेम डायरेक्शन विद द सेम स्पीड. सो इस प्लेन का जो ये है, इस प्लेन का जो स्पीड है वो इस बॉल के अंदर आ ही जाएगा. उसकी वजह से ये बॉल जो है वो धीरे धीरे इस तरह से आगे जाके इधर किसी ना किसी एक पॉइंट पे गिर जाएगा. तो व्हाट इज द मोशन ऑफ द बॉल एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम दिस पर्सन ऑन द ग्राउंड? इट्स अ प्रोजेक्टाइल मोशन और वी कैन से द कर्व्ड मोशन. कर्व्ड मोशन वो परफॉर्म कर रहा है बॉल. ठीक है. लेकिन अगर हम यही बॉल का मोशन इस प्लेन के ऑब्जर्वेशन से अगर देखेंगे, प्लेन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे, मतलब जिस पर्सन ने ये बॉल ड्रॉप किया उस पर्सन के फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अगर देखेंगे तो उस बॉल का मोशन कैसे होगा? इट विल बी जस्ट स्ट्रेट लाइन and it will be in the downward direction. Why? Because whenever this ball will be at this point here, the person will be at this point here.
ठीक है, whenever the ball reaches at this point, the plane also moves forward and the person will be just at the top of the ball here in this way. When the ball reaches at this point, the person will be at this point here, because the person is also moving with the same speed in the forward direction, and that's why the ball will appear to be straight below the person at every point, and that's why the motion of the ball as seen from the person in the plane will be a straight line simply. तो इस पर्सन के लिए इस बॉल का जो मोशन है वो कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा. तो ये फर्क पड़ता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस के चेंज होने की वजह से. तो व्हाट इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस? आई विल रिपीट अगेन. द सिंपली द xy कोऑर्डिनेट सिस्टम with reference to which the motion or the position of an object is described is called as the frame of reference. Okay, but how many of you know that the frame of reference is of two types? One is called inertial and the second is one called as a non-inertial. देखो ठीक से, inertial और non-inertial, ये दो frame of reference के types है. What do you mean by this inertial frame of reference? Inertial frame of reference is the frame which is moving with constant speed. Remember, जो constant speed के साथ move करने वाला frame है उसको हम बोलते हैं inertial frame of reference. But on the other hand, the non-inertial frame of reference is one which is moving with variable speed. Remember, speed variable speed के साथ move करने वाला जो frame है तो उसको हम बोलते हैं non-inertial frame of reference. Remember, the frame which moves with constant speed और constant velocity हमको बोलना पड़ेगा, बिल्कुल constant velocity, okay, क्योंकि डायरेक्शन भी सेम चाहिए तब जाके वो inertial frame कहलाएगा. Otherwise, if suppose it is a variable speed और variable velocity, तो variable velocity के साथ move करने वाला जो frame है तो उसको हम non-inertial frame बोलेंगे. Even ये भी हम बोल सकते हैं कि inertial frame is one which is non-accelerated. ओके, नॉन एक्सेलरेटेड मतलब उसका एक्सेलरेशन कितना होता है, एक्सेलरेशन ऑफ सच अ फ्रेम इज 0, नो डाउट. बट इन द केस ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम, द फ्रेम इज एक्सेलरेटेड वन, एंड सिंस द फ्रेम इज एक्सेलरेटेड, द एक्सेलरेशन of the frame will not be 0, it will be non-zero, something like positive or negative, but it should be non-zero. It's called as accelerated frame. See what happens in the inertial frame. तो inertial frame का example क्या है, देखो ठीक से. What are the examples of inertial frame of reference? Can you suggest any? Frame should be moving with constant velocity. That means suppose we are sitting in a train and the train is moving with constant velocity, then we can call it as a inertial frame, no doubt. But non-inertial frame का example क्या होगा? Non-inertial frame का example है the frame which moves with variable velocity or with some acceleration. For example, if we are sitting in a train and the engine is accelerating the train, and suppose engine की वजह से इस ट्रेन का जो स्पीड है वो बढ़ता जा रहा है, so then it will be a non-inertial frame of reference. Remember, और इवन सपोज ट्रेन के अंदर हम बैठे हैं और ट्रेन को ब्रेक अप्लाई किया है, जैसे ब्रेक अप्लाई किए जाते हैं तो धीरे धीरे ट्रेन का जो स्पीड है वो कम 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 होता जाता है, and that is again a example of the such a non-inertial frame. Remember, और इवन सपोज हम ट्रेन के अंदर बैठे हैं एंड ट्रेन इज टेकिंग अ टर्न, अगेन इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इन दिस केस भले स्पीड इज कांस्टेंट, स्पीड इज नॉट गोइंग टू चेंज, बट द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज ऑलरेडी चेंजिंग एट एवरी पॉइंट, एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस. रिमेंबर, इवन अभी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हम और एक एग्जांपल दे सकते हैं. If suppose there is a lift, we are sitting in a lift and that lift is moving upwards with the constant speed, suppose that is the example of inertial frame, no doubt. But see, whenever the lift starts for moving upwards, तो जैसे ही लिफ्ट स्टार्ट करता है तो उस समय पहले एक 2-3 सेकेंड्स तक क्या होता है, उसका एक्सेलरेशन होता है, unless and until it attains a maximum speed or constant speed, it has an acceleration. And during that time we can consider it as a example of non-inertial frame. Remember, it's an example of non-inertial frame actually. Whenever the lift is moving upwards with constant speed, it's an example of inertial frame. But whenever the lift is moving with acceleration,
देन इट इज एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। इवन अगर सपोज लिफ्ट नीचे आ रहा है, तभी भी देखो नीचे आने के टाइम क्या होता है कि जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है और वो कांस्टेंट स्पीड के साथ अगर नीचे आता है, then it is going to be an example of inertial frame of reference, no doubt. But whenever the lift is moving in a downward direction and if suppose it is stopping, अगर वो नीचे आने का अगर स्टॉप कर रहा है, तो स्टॉप होने के टाइम या स्टार्ट होने के टाइम it can be considered to be an example of non inertial frame of reference. Remember, even अगर सपोज हम मेरी गो राउंड के अंदर बैठे हैं, तो मेरी ग्राउंड के अंदर हम जिस चेयर में बैठे हैं वो चेयर हमारे लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, करेक्ट है। सो व्हेन द मेरी ग्राउंड स्टार्ट्स एंड इट इज मूविंग विद इन अ सर्कुलर मोशन, तो जैसे ये चेयर हमारा सर्कुलर मोशन में परफॉर्म कर रहा है, तो वी कैन कंसिडर इट एज अ एग्जांपल ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम। भले इवन इफ वी आर मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड, बट our means our velocity is not going to be a constant just because of circular motion. तो सर्कुलर मोशन के अंदर कभी वेलोसिटी कांस्टेंट वैसे भी होता नहीं है, तो इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि since the velocity is continuously changing in circular motion, we have to say that the chair in a merry-go-round is example of non-inertial frame of reference. Okay, can you tell me another example of frame of reference which is inertial or non-inertial, you can say? Just put it in the chat box. When the frame of reference is inertial, जो मैंने एग्जांपल दिए उनके अलावा कुछ कोई दूसरे एग्जांपल दे सकते हो? Yes, stationary frame is just an inertial, right? Very good. What can we say? Earth. If you talk about the earth as a frame of reference, what will we say? Is it inertial or non-inertial? The frame of reference which is bound to earth, whether it is inertial one or non-inertial one, क्या समझते हो? देखो, in ideal sense, if you see the earth frame of reference which is bound to earth is actually non-inertial. Why? Because earth is performing circular motion around the sun, right? So since it is performing circular motion around the sun, that means it is an accelerated motion. ठीक है ना? सर्कुलर मोशन में क्या होता है? स्पीड कांस्टेंट होता है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट होता है क्या? Does it satisfy this criteria of inertial frame in which velocity must be constant and acceleration must be zero? No. अर्थ के अंदर वेलोसिटी कांस्टेंट थोड़ी होता है, अर्थ तो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. How can we say that the velocity is constant? And how can we say that its acceleration is zero? No, it is an accelerated motion. Centripetal acceleration continuously acts on the earth, and that is responsible for the circular motion actually. So centripetal force is continuously acting on the earth, which is revolving the earth in a circular motion, and that's why we can consider to be the earth to be a non-inertial frame actually, because it has some acceleration and its velocity is not constant, but it is variable, at least in direction, right? तो डायरेक्शन के अंदर वेलोसिटी जो है वो वेरिएबल है, और इसलिए अर्थ के साथ बंधा हुआ जो फ्रेम है, इट इज आइडियली इट इज नॉन इनर्शियल, नो डाउट, बट फॉर प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हम देखते हैं कि मींस दैट एक्सेलरेशन इज वेरी वेरी स्मॉल and the change in that velocity is very small, so we can just consider its velocity to be almost constant, fairly constant, not ideally, but for practical purpose we can just take the earth, the frame of reference to be bind with earth to be an inertial one. It is not inertial actually, I will repeat again, it is not an inertial actually. Ideally agar dekha jaye to it is a non inertial frame, but for practical purpose we can take the frame of reference bound with earth to be an inertial one. Okay, तो अभी ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने आज के लेक्चर में देखा, और फ्रेम ऑफ रेफरेंस किस तरह से इनर्शियल नॉन इनर्शियल होता है और उसके डेफिनेशंस क्या होते हैं, ये सब हमने आज के लेक्चर में देखा. सो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम स्यूडो फोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे. ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रियल फोर्सेस एंड देयर डेफिनेशंस इन टुडेज लेक्चर. सो we'll discuss about the pseudo force in the next lecture. चलो ठीक है, सो
let us stop here. Okay,